what or how do we classify accounting or business transactions? How do we classify accounting or business transactions? हम classification कैसे करते हैं? How do we classify accounting or business transactions? All transactions are classified into 5 categories. All transactions are classified into 5 categories, and those 5 categories are assets, liabilities, capital, expenses, and revenues. So all transactions are classified into 5 categories. Accounting की जो भी transaction होगी, ऐसी activity जिसमें monetary value involve होगी, हम उसको 5 categories में divide करेंगे. Those 5 categories are assets, liabilities, capital, expenses, and revenues. And as promised in the last class, मैं जो term introduce करूंगा, मैं उसकी nitty-gritties में जाना शुरू कर दूंगा. So I will begin off with assets. जिनको पता है assets क्या होते हैं, kindly write in the chat box what are assets. Assets क्या हैं? Before I give my answer, a comment that I would like to make is resources owned by the business. जितने लोगों ने लिखा है resources owned by the business, वो गलत है. जितने लोगों ने लिखा है resources owned by the business, वो गलत है. क्यों गलत है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. Assets are the resources of the business, whether owned or owed. Assets are the resources of the business, whether owned, चाहे वो हमारी अपनी resources हो, और owed, चाहे वो हमने उधार पे resources ली हो. So assets are the resources of the business. वो सारे resources जो business इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो business के अपने resources हों, चाहे वो अपने resources ना हो. हसन, assets are the resources of the business, whether owned or owed. चाहे वो आपके अपने resources हों, चाहे वो किसी और के resources हों, अगर वो resources business में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, वो सब resources, हर वो resource जो business के अंदर इस्तेमाल हो रही है, वो asset है. ठीक है. So assets are divided into 2 categories. Assets are divided into 2 categories. What are those 2 categories? कोई chat box में बता सकता है मुझे what are the 2 categories in which we divide the assets? Current assets and non-current assets. Tangible and intangible. Okay. All right. Officially, assets are divided into 2 categories. Non-current assets and current assets. Assets are divided into 2 broad categories: current assets and non-current assets. ठीक है जी. Non-current assets are also known as fixed assets.
हम यूजुअली टर्म यूज करेंगे नॉन करंट एसेट्स, लेकिन कभी किसी को फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ नजर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यही होता है एज नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, कैन एनीवन डिफाइन नॉन करंट एसेट्स? किसी को पता है नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? what are non current assets? non current assets are those resources of the business that are used by the business for more than an accounting period. These are those assets which are used by the business for more than an accounting period. Accounting period usually 1 साल का होता है. Accounting period is usually of 1 year. Usually, मैंने usually बोला है. But in case of new businesses, it is allowed to have the first accounting period up to 18 months. Normal course of business में और usually 99% cases के अंदर accounting period जो होगा वो 1 year का ही होगा. Majority of the times accounting period को हम 1 year ही consider करेंगे. लेकिन अगर कभी कोई नया business होता है तो नए business के पास ये permission है कि वो अपना पहला accounting period, सिर्फ पहला accounting period up to 18 months extend कर सकते हैं. Accounting period is usually ज्यादातर 1 साल का हो. लेकिन अगर 1 साल से अगर कोई नया बिजनेस है, ब्रांड न्यू बिजनेस है, कोई ऐसा बिजनेस है जो नया नया फॉर्म हुआ है, तो उसके पास ये परमिशन है कि वो अपने अकाउंटिंग पीरियड को अप टू 18 मंथ्स एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन सिर्फ पहली दफा. लेकिन फ्रॉम उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग पीरियड हैज टू बी 1 ईयर. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली हम इसको 1 ईयर ही कंसिडर करेंगे. कॉन्सेप्चुअली इसको हम 1 ईयर ही कंसिडर करेंगे. लेकिन कभी किसी सवाल के अंदर कोई ऐसा एग्जामिनर टर्म यूज कर ले कि पहला ईयर ऑफ द बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि 18 मंथ्स अकाउंटिंग पीरियड है या अप टू 18 मंथ्स. अप टू 18 मंथ्स मतलब 12 से 18 महीने में, यानी 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने, 18 महीने, जो भी डिसाइड किया हुआ है. अगर कुछ ऐसी टर्म यूज होती है तो प्लीज रिमेंबर, देन the accounting period will be for that duration only for the first time. उसके बाद से आगे के सालों में 1 ईयर ही होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स बनाते हैं. अगर कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी 3 मंथ्स या एवरी 6 मंथ्स बनाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग पीरियड उसका 3 महीने या 6 महीने का है. ये कंपनी की पॉलिसीज पे डिपेंड कर सकता है. हो सकता है एक बिजनेस बोले कि मैं तो हर 3 महीने बाद अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, तो वो उस कंपनी की, उस बिजनेस की मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन उसका अकाउंटिंग पीरियड जो होगा वो 1 ईयर का ही होगा. द अकाउंटिंग पीरियड विल बी ऑफ 1 ईयर. ठीक है. तो अगर कोई हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, यानी क्वार्टरली हर 3 महीने बाद को बोलते हैं इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, it is called quarterly financial statements. And if financial statements
are prepared after every 6 months, they are called half yearly financial statements. ठीक है, तो कभी आपको अगर बोला है कि कंपनी हर 3 महीने बाद और हर 6 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने या 6 महीने का है। उसका अकाउंटिंग पीरियड फिर भी 1 साल का होगा। उसका अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का ही कंसिडर होगा। वो उसकी मर्जी है कि वो हर 3-3 महीने बाद अपने प्रॉफिट चेक करती है, या हर 6-6 महीने बाद अपने प्रॉफिट चेक करती है, या हर 3-3 6-6 महीने बाद अपने एसेट्स वगैरह चेक करती है। वो उसकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है। वो यूजुअली 1 ईयर का है। सिर्फ उन बिजनेसेस को जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बिजनेस होता है, उसको पहले साल ये इजाजत है या पहली दफा ये इजाजत है कि वो अपना अकाउंटिंग पीरियड अप टू 18 मंथ्स एक्सटेंड कर सकती है। क्योंकि जब नया बिजनेस फॉर्म होता है, तो बिजनेस फॉर्म होते होते बहुत सारी निटी-ग्रिटीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही होती हैं, बहुत सारी चीजें स्मूथ आउट हो रही होती हैं। तो उनको ये परमिशन मिलती है कि क्योंकि ये पहली दफा है और सिंस आप चीजों को स्मूथ आउट कर रहे हैं, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, तो आपके पास ये परमिशन है कि आप पहले अकाउंटिंग ईयर को अपने एक्सटेंड कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फेस हो, लेकिन ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नॉर्मली हम अपनी डेफिनेशन में जब अकाउंटिंग नॉर्मली एंड यूजुअली व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, when the question is silent, we will consider accounting period to be 1 year. जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला हुआ, तो अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर का ही होगा। सो व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस दैट आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड। हर वो चीज जो बिजनेस 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, वो नॉन करंट एसेट्स होंगी। और एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स कोई देगा? व्हीकल्स, बिल्कुल सही। और कोई एग्जाम्पल ऐड ऑन करेगा? बिल्डिंग्स, मशीनरी, लैंड, प्रेमिसेस। वैसे प्रेमिसेस जो है ना, वो बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग को मिला के ही बोलते हैं। इक्विपमेंट्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी एक ही बात है, प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं आप इसको। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स, प्लॉट्स लैंड में आ जाएगा। फर्नीचर, or non-current assets are the resources which are used in the course of a business for more than an accounting period. More than an accounting period में inventory नहीं आती, more than an accounting period में advance और prepayments नहीं आती, more than an accounting period में capital या stocks नहीं आते। हर वो चीज जो आप 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो नॉन करंट एसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स क्या हो गए? What are current assets? What are current assets? Current assets are all those resources of the business that are used in the course of a business for less than an accounting period. Current assets are all those assets or all those resources of the business that are used in the course of a business for less than an accounting period. हर वो resource
जो 1 साल से कम अरसे के लिए बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होती है। इसकी एक और फीचर ये होता है दैट दे यूजुअली चेंज देयर फॉर्म continuously. They usually change their form continuously. ये usually अपना form continuously change कर रहे होते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिखते हैं और उसके बाद में चेंज ऑफ फॉर्म की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत सारे लोग लिख रहे थे बार बार, इन्वेंट्री। एज आई प्रोमिस्ड, मैं हर टर्म जो यूज कर रहा हूं मैं उसको इलैबोरेट करूंगा। इन्वेंट्री, receivables, prepayments, बैंक एंड कैश। अच्छा जी, एक और चीज याद रखिएगा, अगर कभी आप कैश और बैंक को साथ लिखते हैं टुगेदर, तो यू राइट इट एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड बैंक टुगेदर आर कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सो एक एक की निटी-ग्रिटीज में जाना शुरू करते हैं। अच्छा, यही एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स की। ठीक है, स्टॉक। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है? व्हाट आर इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड, इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बताऊं कि गुड्स क्या होते हैं। सो अगर किसी को पता है गुड्स क्या होते हैं, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट आर गुड्स? गुड्स क्या हैं? व्हाट आर गुड्स? Anyone has any idea what are goods? Products, usable products. And the correct answer is goods are all those things that a business trades in. जिस चीज का बिजनेस होता है उसको गुड्स बोलते हैं। आइटम्स बॉट एंड सोल्ड बाय द बिजनेस, थिंग्स विच आर बॉट एंड सोल्ड बाय द बिजनेस, ये सारी बातें सही हैं। ठीक है, लेकिन ये बोलना गुड्स आर रिसोर्सेज, तो बेटा एसेट्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। एसेट्स हमने क्या डिफाइन किया? रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। तो ऑब्वियसली अगर मैं एसेट की कोई एग्जांपल लिखूंगा तो वो रिसोर्स तो होगी ना। तो ये बोलना कि गुड्स आर रिसोर्सेज इज नॉट एन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिकॉज हमने डिसाइड किया कि एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। हम उसकी एक कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक एग्जांपल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स है। तो गुड्स आर दोज थिंग्स दैट अ बिजनेस ट्रेड्स इन। तो अगर एक बिजनेस है जिसका शू बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, तो उसके लिए शूज गुड्स हैं। अगर एक आदमी है उसका टेलीविजन का बिजनेस है तो उसके लिए टीवी गुड्स हैं। अगर एक आदमी है जिसका एसी का बिजनेस है उसके लिए एसी गुड्स हैं। एक आदमी है जिसके लिए जिसका काम फर्नीचर का है, वो फर्नीचर का बिजनेस करता है, फर्नीचर बेचता खरीदता है, तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हैं। जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज में वो ट्रेडिंग करता है, वो गुड्स होते हैं। तो अगर एक बंदा जिसका शू का बिजनेस है वो अपनी दुकान में एसी लगाता है, तो एसी क्या होगा? एक बंदा जिसका शूज का बिजनेस है
वो अपनी दुकान में एसी लगाता है, टीवी लगाता है, फर्नीचर लगाता है, तो उस शख्स के लिए टीवी, एसी, फर्नीचर क्या होगा? जिन लोगों ने एसेट लिखा है, तो क्या गुड्स एसेट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। नॉन करंट एसेट इज द राइट आंसर। तो जिस बंदे का शूज का बिजनेस है, फॉर अ शू ट्रेडर, एसी जो उसने अपने कस्टमर्स को ठंडा रखने के लिए बनाया लगवाया, टीवी जो उसने अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए लगाया, फर्नीचर जो उसने अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए और शू ट्राई करने के लिए लगाया, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। लेकिन शूज उसके लिए गुड्स हैं। सिमिलरली एक बंदा जिसका एसी का बिजनेस है, उसने अपनी दुकान में, एसी की दुकान में फर्नीचर लगाया, उसने अपनी एसी की दुकान में टीवी लगाया, तो उस शख्स के लिए फर्नीचर और टीवी क्या है? नॉन करंट एसेट है, लेकिन एसी गुड्स हैं। इसी तरह एक बंदा जो टीवी बेचता है, उसने अपनी टीवी की दुकान में एसी लगाया, फर्नीचर लगाया, तो उस शख्स के लिए टीवी गुड्स हैं, लेकिन एसी और फर्नीचर नॉन करंट एसेट। सो जिस चीज में बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, जिस चीज को वो बाय और सेल कर रहा है, वो चीज बिजनेस के लिए गुड्स है। और उसके अलावा जो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उसने ली हैं, जिसको वो मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड इस्तेमाल करने का सोच रहा है, एसी लगाएगा अपनी दुकान में, तो इसलिए तो नहीं लगाएगा ना कि एसी दुकान से उतार के बेच दूंगा। कोई दुकान वाला जूते खरीदने के लिए आया और उसने बोला तुम्हारी दुकान का एसी बहुत अच्छा है, उसने बोला खरीद लो, ऐसे थोड़ी होगा। अगर वो जूते की दुकान में, तो वो जूते बेचेगा, अपनी दुकान का एसी उतार के नहीं बेच देगा। या उसकी दुकान में जो टीवी लगा हुआ है, वो टीवी निकाल के नहीं बेच देगा। वो क्या बेचेगा? वो सिर्फ एसी बेचेगा, सॉरी, वो सिर्फ जूते बेचेगा। तो जूते आर गुड्स, जूते आर रिसोर्सेज which are used for less than an accounting period because they are the items that he's trading in. वो खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। जिस चीज को खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, उसमें वो ट्रेडिंग कर रहा है। जिस चीज में वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो उसके गुड्स हैं। और वो चीज जो उसने अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन या फैसिलिटीज के लिए रखी है, वो नॉन करंट एसेट्स है। सवाल पूछा गया, इज इट राइट टू से गुड्स आर करंट एसेट्स? बेटा करंट एसेट्स की तो एग्जांपल करवा रहा हूँ। करंट एसेट की पहली एग्जांपल है इन्वेंट्री, ठीक है। उस पहली एग्जांपल इन्वेंट्री के अंदर मैंने आपको, बिफोर आई मूव्ड ऑन, आई सेड इन्वेंट्री इज स्टॉक ऑफ गुड्स। Alternative name of inventory I said is stock of goods. And I said that before I move on, I have to clarify what goods are. Goods are the things that a business trades in. ये वो चीजें हैं जिसमें बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, इसलिए उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि गुड्स क्या हैं और नॉन करंट एसेट्स क्या हैं। एसी की दुकान में एसी इसलिए रखा हुआ है कि वो बिक सके और खरीदा जा सके, तो खरीदने और बेचने के लिए एसी रखा जाएगा, तो वो गुड्स हैं। लेकिन अगर किसी और दुकान में एसी ठंडा करने के लिए लगाया जाएगा, तो वो गुड्स नहीं है, वो नॉन करंट एसेट है। टीवी की दुकान में जो टीवी पड़ा हुआ है, वो टीवी गुड्स है क्योंकि वो बेचने के लिए रखा हुआ है। लेकिन अगर किसी और दुकान में टीवी लगाया गया है टू एंटरटेन द कस्टमर्स, तो वो टीवी गुड्स नहीं है, वो टीवी नॉन करंट एसेट्स हैं। So by reading the question, by reading the transaction, you need to realize whether you are referring to goods or you are referring to non-current assets. If you are referring to goods, then the concept is inventories. Inventories are stock of goods. Anyone who can define a TV in a restaurant is definitely a non-current assets. क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए गुड्स क्या हैं? खाने पीने की चीजें। वो चीजें जो वो खरीद के बेच रहा है, उसने मे बी सब्जियां खरीदी, उसको प्रोसेस किया और उसके बाद बेच दिया, तो वो एक रेस्टोरेंट फूड बिजनेस में है, तो फूड उसके लिए गुड्स हैं। लेकिन टीवी, एसी उसकी दुकान में, फर्नीचर उसकी दुकान में, वो सब नॉन करंट एसेट्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप दिस मेक्स सेंस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, व्हाट आर इन्वेंटरीज? व्हाट आर स्टॉक ऑफ गुड्स? इन्वेंटरीज क्या हैं? स्टॉक ऑफ गुड्स
इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। सो व्हाट आर स्टॉक ऑफ गुड्स, व्हाट आर इन्वेंट्रीज? स्टॉक ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री को हम डिफाइन करेंगे दैट इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ गुड्स आर द गुड्स बॉट और मैन्युफैक्चर्ड, सिर्फ बॉट नहीं, bought or manufactured with an intention of resale. ये intention बहुत इंपॉर्टेंट है, because actions are judged by intentions. बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग में भी actions are judged by intentions. आपकी इंटेंशन क्या थी? आपने एक चीज खरीदी रीसेल करने की नियत से, तो वो इन्वेंट्री है। अगर वो बिकी नहीं, इन्वेंट्री आर द इंटेंशन ऑफ रीसेल yet unsold. मैंने बेचने की नियत से माल खरीदा लेकिन बेच नहीं पाया, बेचने की नियत से माल बनाया लेकिन बेच नहीं पाया। तो अगर मैंने बेचने की नियत से कुछ खरीदा था लेकिन मैं बेच नहीं पाया, या बेचने की नियत से कुछ बनाया था लेकिन बेच नहीं पाया, तो वो मेरी इन्वेंट्री है। So all the items goods held by a business for selling in the market to earn profit. देखो बेटा मेरा इख्तिलाफ है अर्न प्रॉफिट पे, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि हर बिजनेस का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो बहुत सारे बिजनेस होंगे जिनके पास माल पड़ा होगा, बेचने की नियत से पड़ा होगा, लेकिन उनकी नियत प्रॉफिट कमाने की नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया। उनमें से मेजॉरिटी ने ये काम पैसे कमाने के लिए किया है, टू अर्न प्रॉफिट्स। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने ये काम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किया है। वो मास्क जो मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, वो उन्होंने खरीद के या मैन्युफैक्चर करके 10 रुपए के 3 बेचने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाह रहे, वो लोगों की मदद करना चाह रहे। हैंड सैनिटाइजर जब छोटी छोटी बॉटल्स 500-500 रुपए की हो गई, तब भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे जो वो बॉटल्स 50-50 रुपए की दे रहे थे, क्योंकि उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं था, उनका इंटेंशन लोगों की मदद करना था। तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाना इज नॉट द की पॉइंट। द की पॉइंट इज ऐसी कोई चीज जो आपने बेचने के लिए खरीदी लेकिन अभी तक बेची नहीं या बेच नहीं पाए, वो आपकी इन्वेंट्री है। बिकॉज these are the goods that you have bought or manufactured with the intention, नियत क्या है, of resale, लेकिन yet unsold. I hope this is clear to all of you. If this is clear, why do we say it resale? Why not sale? What does it makes? What, does it make a difference? Always had this confusion. Okay. Resale का मतलब होता है, री का मतलब होता है दोबारा। री इज अ प्रीफिक्स विच मीन्स अगेन, ठीक है। रीसेल बेसिकली मतलब इसलिए हम लोग वर्ड करते हैं कि होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, रिटेलर कस्टमर को सेल करेगा, और मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया होगा। जब पहली बार बिकती है कोई चीज तो वो सेल है, लेकिन जब बिकी हुई चीज दोबारा बिके, दोबारा बिके, दोबारा बिके, तो वो रीसेल होती है, ठीक है। हम जब ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं तो हम बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर की बात कर रहे होते हैं। तो जब रिटेलर और कस्टमर की बात होती है, उससे पहले ये चीज 2 दफा बिक चुकी है, इसलिए टर्म यूज होता है रीसेल, क्योंकि रिटेलर ने इसको दोबारा बेचने के लिए खरीदा है, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर बेच रहा होता तो हम टर्म यूज करते सेल। वैसे जनरली स्पीकिंग सेल एंड रीसेल आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। अगर आप सेल बोलें या रीसेल बोलें, इंटरचेंजेबली टर्म यूज होती है, कोई मसले की बात नहीं है। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से या ओ लेवल पर्सपेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि मुझे कंफ्यूजन होती है कि रीसेल और सेल में क्या फर्क है, इसलिए आपको समझाया मैंने। जब
बना के पहली दफा माल बेचा जाए तो वो सेल है, लेकिन एक दफा बिक गया वो माल, उसके बाद दोबारा बेचा गया, तिबारा बेचा गया, चौथी बार बेचा गया, तो जब वो मल्टीपल चेन्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको रीसेल बोलते हैं। आई होप दैट मेक सेंस एंड आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो इन्वेंट्रीज आर द गुड्स बॉट और मैन्युफैक्चर्ड विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेल। वो चीज जो आपने रीसेल की इंटेंशन से खरीदी है उसको बेच नहीं पाए तो वो इन्वेंट्री है। अगली टर्म जो मैंने यूज करी वो है रिसीवेबल्स। Receivables are the people or businesses who owe us money. When I say who owe us money, us का मतलब है बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को मनी ओ करते हैं। Receivables are the people who owe us money. Receivables दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स and general receivables. Receivables are divided into two categories, trade receivables and general receivables. अच्छा, when I say accounts receivable, तो ये जनरल टर्म है अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल दो कैटेगरीज में डिवाइड है, ट्रेड रिसीवेबल्स और जनरल रिसीवेबल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है। आप ये दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पीपल और businesses who bought goods on credit from us, यानी our business, या all those people or businesses to whom we sold goods on credit. ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग होते हैं या वो बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने हमसे उधार पे माल खरीदा होता है, या वो लोग हैं जिनको हमने हमने मतलब हमारे बिजनेस ने उधार पे माल बेचा होता है, ठीक है। अगर गुड्स इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। जनरल रिसीवेबल्स या नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल्स आर दोज पीपल और बिजनेसेस who borrowed money from us. वो लोग जिन्होंने हमसे पैसे उधार लिए हुए, जिन लोगों ने हमसे पैसे उधार लिए हैं। So general receivables are the people or business who borrowed money from us or our business. अब सपोज करें मेरे बिजनेस का नाम है ए और मैंने बी को माल उधार पे बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी। मेरे बिजनेस का नाम ए है और मेरे बिजनेस ने गुड्स उधार पे बेचे बी को। अगर मेरे बिजनेस ने गुड्स उधार पे बेचे बी को, तो बी ऑन द अदर हैंड मेरे बिजनेस का नाम ए है और मैंने लेंट मनी टू सी,
मैंने सी को पैसे उधार दिए, तो सी मेरा जनरल रिसीवेबल है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को माल उधार पे बेचूंगा, सो जनरल रिसीवेबल्स वो लोग हैं जिनके साथ माल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिनके साथ गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जिनके साथ गुड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो जनरल रिसीवेबल्स हैं। आई होप दिस मेक सेंस। सहल, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। सो रिसीवेबल्स या तो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, ट्रेड रिसीवेबल वो वाले लोग होंगे जिनको मैंने माल उधार पे बेचा है। जी, मैं जब किसी को उधार पे माल देता हूं तो मैं उससे पैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, मतलब ऐसा थोड़ी होगा मैं उसको गिफ्ट कर रहा हूं। आई एम नॉट गिफ्टिंग हिम, मैंने उसको उधार पे क्रेडिट पे माल बेचा है। क्रेडिट पे माल बेचने का मतलब होता है मैंने उसको उधार पे दिया है, वो मुझे पैसे वापस देगा। क्योंकि वो मुझे पैसे वापस देगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मुझे पैसे वापस देगा, इसीलिए वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। जी, ऑन क्रेडिट एंड ऑन टाइम इज द सेम थिंग। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट या सेलिंग गुड्स ऑन टाइम मीन्स उधार पे माल दिए, उधार पर माल बेचा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट बैक द अमाउंट। I hope Sara this is clear to you. I hope everyone is following me. I hope everyone has understood this. अगली टर्म जो मैंने यूज करी है वो है प्री पेमेंट्स। सर, इफ आप ऑन क्रेडिट गुड सेल करें, वुड एनी एक्स्ट्रा मनी बी चार्ज बिकॉज इट इज बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट? सुनैफ, अच्छा सवाल है। सुनैफ का सवाल यह है कि अगर मैं किसी को माल क्रेडिट पे बेच रहा हूं तो क्या मैं उसको महंगा बेचूंगा? देखें, जब माल कैश पे बेचा जाता है ना, तो यूजुअली कैश पे बेचा हुआ माल सस्ता होता है कंपेयर टू क्रेडिट पे बेचा हुआ माल। बट इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड पॉलिसी टू पॉलिसी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी से आप उधार पे माल लें या कैश पे माल लें, वो आपको सेम प्राइस पे माल देगी। ऐसा हो सकता है कि आप एक कंपनी से कैश पे माल लें तो सस्ता मिले, उधार पे माल लें तो महंगा मिले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनीज पॉलिसी एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। क्लियर सुनैफ? कैश एंड क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? कैश एंड क्रेडिट में ये डिफरेंस है कि कैश में यू हैव टू पे ऑन द स्पॉट। कैश सेल्स मीन्स selling the goods for immediate cash. Selling the goods for immediate cash. फौरन से पैसे मिल जाना is cash sales. Credit sales means selling goods on time basis. On time basis. Payment will be received. Payment will be received after few days. अच्छा जी, सवाल आया अगर वो चेक दे मगर हम उसे बाद में कैश कराएं तो वो कैश सेल्स की कैटेगरी में शामिल होगा। अगर किसी ने हमें चेक दिया है इमीडिएट सेल के ऊपर लेकिन हम उसको बाद में वो करवा रहे हैं कैश, तो वो हमारा मसला है। सवाल ये है विल दिस बी इंटरेस्ट? नहीं जी, क्रेडिट सेल पे अगर आप माल महंगा बेचते हैं तो वो इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता।
अगर आप क्रेडिट पे माल महंगा बेच रहे हैं और कैश पे सस्ता बेच रहे हैं तो वो इंटरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। एनी अदर क्वेश्चन? जी, प्रीपेड और प्रीपेमेंट्स एक ही बात होती है। प्रीपेड एंड प्रीपेमेंट्स ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती है। Sir, if we haven't sold the goods on credit and received the amount on spot, will it still be a receivable? No, it will be cash sales. अगर हमने माल क्रेडिट पे नहीं भेजा और हमें ऑन द स्पॉट पैसे मिल गए तो इसका मतलब वो रिसीवेबल नहीं है, इसका मतलब वो तो कैश सेल है। Sir, if someone gives a check of a month later, will it be credit sales? Yes, it will be credit sales. अगर पेमेंट पीरियड एक महीने के बाद का है तो उसका मतलब हमने उसको उधार पे माल दिया है, और अगर उसको हमने उधार पे माल दिया है तो वो क्रेडिट सेल्स है। If this is clear, write clear in the chat box so that I move on to prepaid and prepayments. All right, what are prepayments? सिर्फ फर्क ये है कि ये अमाउंट पेड इन एडवांस for goods or service being received later. अगर मैं सपोज करें किसी को एडवांस पेमेंट कर दूं उस चीज की जो मैं बाद में यूटिलाइज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल स्कूल फीस। स्कूल लेट्स से आपसे फीस चार्ज कर रहा है जून, जुलाई और अगस्त की एक ही फी चालान के अंदर, ठीक है। जून का महीना गुजर गया, जुलाई चल रहा है, ये जो अगस्त के महीने की आपने फीस पे कर दी है, क्या ये अगस्त का महीना शुरू हो गया है? अभी तक तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अगस्त की फी पे करी है वो प्री पेमेंट है, एडवांस पेमेंट है। और क्योंकि ये एडवांस पेमेंट है, ये आपका करंट एसेट है। क्योंकि अगर लेट्स से आप ये फैसला करते हैं कि आप जुलाई के बाद स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये आपके वो पैसे हैं जो स्कूल के पास अमानत पड़ी हुई है और स्कूल आपको लौटाएगा। दिस इज एन एडवांस or a prepayment that you can ask back if you are not willing to utilize the services in future. जो महीना स्टार्ट हो गया उस महीने की फी ड्यू हो गई, जो महीना स्टार्ट नहीं हुआ उसकी जो फी है वो प्री पेमेंट है, वो एडवांस पेमेंट है। इसी तरह जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, डिफरेंट जगहों पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है, कभी कुछ सर्विसेज के लिए भी दिया जाता है, कभी गुड्स के लिए भी दिया जाता है। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ प्री पेमेंट, इज एन एडवांस पेमेंट, इज अ सिक्योरिटी विच इज योर करंट एसेट्स। क्योंकि आप जब वो सर्विसेज इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या उससे रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, यू हैव द राइट टू आस्क बैक for this security deposit, and hence it is a prepayment. So prepayments are the amounts paid in advance for goods and services being received later. I hope this is clear. Like business related example, school सबसे बड़ी example school है। जो स्कूल की फीस आप दे रहे हैं एडवांस में, 3 महीने का वाउचर दे रहे हैं, वो 3 महीने का वाउचर में जो महीना इस्तेमाल नहीं हुआ वो आपका प्री पेमेंट है। Isn't security deposit a long term liability? No, it's not a long term liability. It's a long term liability for a school. अगर स्कूल सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है तो आपके लिए
बेटा करंट एसेट का मतलब है आपकी चीज है, आप जब चाहें आप अपनी चीज पैसे मांग सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री आपका अपना माल है, जब चाहे बेच सकते हैं। रिसीवेबल आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, जब चाहे मांग सकते हैं। इसी तरह प्री पेमेंट, आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया है, वो आपकी पेमेंट है, आपके पैसे हैं, आप जब चाहे मांग सकते हैं, ठीक है। अगर हाफ मंथ पड़ा और फिर निकल गए, नहीं, जैसे ही मंथ शुरू हुआ 1 जुलाई को जुलाई की फीस लग गई, अगर आपने जुलाई के पैसे वापस लेने तो आपको जून में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने अगस्त के पैसे वापस लेने हैं तो आपको जुलाई में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगस्त का महीना शुरू हुआ, द मोमेंट अगस्त का महीना शुरू हुआ, अगस्त की फी लग गई। सेम इज द केस विद रेंट। एक और एग्जांपल दे देता हूं, रेंट। जब आप रेंट पे कोई चीज लेते हैं तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देते हैं और एडवांस रेंट भी देते हैं। अगर आपने 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, अब आप वो जगह खाली कर रहे हैं, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से अपने 6 महीने के जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए थे वो पैसे वापस मांगेंगे, क्योंकि ये आपका राइट है, वो पैसे आपके हैं, तो आप जब चाहें ले सकते हैं वापस। सिमिलरली अगर आपने एडवांस रेंट दिया था 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, लेट्स से, तो जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया, तो जुलाई का जो रेंट है वो लग गया, चाहे आज 10 जुलाई है तो भी पूरे महीने का लग गया। आप आज खाली कर दें वो जगह तो भी पूरे महीने का रेंट लग गया। आप 1 जुलाई को खाली कर दें तो भी पूरे महीने का रेंट लग गया। लेकिन जो अगस्त और सितंबर का आपने एडवांस रेंट दिया हुआ है, ये आपका प्री पेमेंट है और ये आपके पास राइट है कि आप दोबारा मांग सकें। अगली टर्म जो मैंने यूज करी, दैट इज बैंक। व्हाट डू आई मीन बाय बैंक? बैंक का मतलब होता है एनी मनी deposited into the bank by the business. Any money deposited into the bank by the business. So bank is the place where any money is deposited by the business. Sir, क्या है? What is cash? Cash is the amount of money available in the business. वो पैसे जो आपने बिजनेस में रखे हुए, बिजनेस के कैश टिल के अंदर रखे हुए, वो सब कैश है। और एक टर्म मैंने यूज करी थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओ लेवल अकाउंटिंग में इज लिमिटेड टू कैश एंड बैंक। कैश को कैश इन हैंड भी बोलते हैं और बैंक को कैश एट बैंक भी बोलते हैं। कैश को कैश इन हैंड भी बोलते हैं, बैंक को कैश एट बैंक भी बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की टर्म अक्सर आपको नजर आएगी, तो इसका मतलब कैश प्लस बैंक है। परेशान या कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने एक और टर्म इस्तेमाल करी थी करंट एसेट्स के लिए। मैंने कहा था कि दे चेंज देयर फॉर्म कंटिन्यूअसली विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक छोटी एग्जांपल के थ्रू छोटी सी चीज समझाऊंगा, उससे कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दे चेंज फॉर्म कंटिन्यूअसली? मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हुए, जैसे ही मैंने वो पैसे बैंक से निकाले वो बन गया कैश। मैंने उस पैसे से माल खरीदा जो अभी तक बिका नहीं है, वो बन गया इन्वेंट्री। अगर मैंने वो माल कैश पे बेच दिया तो वो वापस कन्वर्ट हो गया कैश में। अगर वो माल मैंने चेक पे बेच दिया तो वो कन्वर्ट हो गया बैंक में। अगर वो माल मैंने उधार पे बेच दिया
तो वो कन्वर्ट हो गया रिसीवेबल्स में। जब रिसीवेबल ने मुझे पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो फिर से कैश बन गया। और अगर रिसीवेबल ने मुझे पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो वो बैंक में चले गए। इसलिए मैंने कहा था कि करंट एसेट्स चेंज देयर फॉर्म कंटिन्यूअसली। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर आप अपने पास जो बैंक में पैसे होते हैं उसको निकालते हैं, उससे माल खरीदते हैं। माल या तो कैश पे बेचते हैं, या चेक से बेचते हैं, या रिसीवेबल को उधार पे बेचते हैं, फिर उससे पैसे लेते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। मतलब एक जगह पे पैसे स्टक नहीं हो जाते बिजनेस में। बिजनेस अपने पैसों को रोल कर रहा होता है, ताकि क्यों कर रहा होता है? ताकि वो बिजनेस एक्टिविटी कर सके, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। तो इन ऑर्डर टू मीट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस फ्रॉम टाइम एंड अगेन convert itself or its current assets from one position to the other. If this is clear, write yes in the chat box. If there is a question, feel free to ask. सर इस वेब में प्री पेमेंट भी यूज करें? इस वेब में प्री पेमेंट यूज करना कॉन्सेप्चुअली आपको डिफिकल्टी में डाल देगा, इसलिए यूज नहीं करी। ठीक है, प्री पेमेंट जो होती है उसका थोड़ा सा अलग हिसाब किताब होता है कि आपने किसी को पैसे एडवांस में दिए, प्री पेमेंट करी, उसने आपको पैसे वापस किए बैंक की फॉर्म में, आपने उसको कैश करवा लिया, फिर आपने किसी को प्रीपे करा, उसने आपको पैसे वापस किए। बेटा आपके पास पैसे थे, कैश था, आपने उस कैश से माल खरीदा। माल आपने या तो कैश की फॉर्म में वापस बेच दिया, या चेक के थ्रू किसी को पैसे मिल गए आपके पास, या आपने वो माल क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा, तो रिसीवेबल बन गया। अब वो रिसीवेबल आपको या तो वाया बैंक पैसे देगा, या वो आपको वाया कैश पैसे देगा। आप उसको फिर माल खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, तो ये साइकिल चलती रहती है। जोहा, इज दिस क्लियर नाउ? आपके पास पैसे पड़े हैं तो आपने उस पैसे से माल खरीदा, उसके बाद आपने वो माल बेचा। जब आपने वो माल बेचा तो आपके पास दोबारा पैसे आ गए, तो ये साइकिल चलती रहती है। सो हमने एसेट्स की निटिग्रिटीज में घुस के एसेट्स के बारे में डिस्कशन करी कि एसेट्स दो तरह के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और दोनों की एग्जांपल्स और दोनों की निटिग्रिटीज देखी। नाउ वी विल मूव ऑन टू लायबिलिटीज। सो व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज क्या हैं? Liabilities are the resources owed by the business. They are the obligations that the business has to fulfill. वैसे obligation से बेहतर word होता financial obligation. Liabilities are the resources owed by the business. They are the financial obligations that the business has to fulfill. They are the financial obligations that the business has to fulfill. So they are the financial obligations that the business has to fulfill. ये business के उधार हैं जो business को pay off करने हैं, pay back करने हैं, हर सूरत करने हैं। ठीक है? So yes, जो सबने जवाब दिए वो सही है। They are also divided into two categories. Non-current liabilities and current liabilities. Non-current liabilities and current liabilities.
नॉन करंट लायबिलिटीज का ऑल्टरनेटिव नेम होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सही। सो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज are those obligations that the business are those financial obligations that the business has to repay after an accounting period. Non-current liabilities are those financial obligations that the business has to repay after an accounting period. एक साल के बाद, एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो ऑब्लिगेशंस आपको पे करनी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम बैंक या फैमिली या फ्रेंड्स, ऐसे लोन जो आपको बैंक, फैमिली या फ्रेंड्स ने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिए हों, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए दिए हों। और इसकी एक और अच्छी एग्जाम्पल होती है डिबेंचर्स। किसी को पता है डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो राइट इट इन द चैट बॉक्स। व्हाट आर डिबेंचर्स? डिबेंचर्स are the IOUs IOU certificates of the business. These are long-term loans that needs to be repaid after a long period of time. They have fixed rate of interest charged on them. They have fixed rate of interest charged on them, and they are usually secured against mortgage. They are usually secured against mortgage. अब mortgage क्या होता है? अगर किसी को पता है तो बात मैं वाइंड अप करके दोबारा से समझाऊंगा डिटेल में। What is mortgage? Mortgage is a security, a collateral that in case of non-payment of loan, in case of non-payment of loan, the asset kept as collateral will be sold and amount will be recovered. आसान अल्फाज में बोलूं तो अगर किसी चीज को गिरवी रखवाया जाए, जो टर्म उर्दू में यूज होती है या कॉमनली यूज होती है वो गिरवी है। यरगमाल, जी यरगमाल भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो चीज गिरवी रखाई जाए, ठीक है, उसको मोर्टगेज बोलते हैं। मोर्टगेज क्या है कि अगर सपोज करें मैंने किसी से
25 लाख रुपए का लोन लिया, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझसे कोई एक ऐसा एसेट मेरा जिसकी वर्थ 25 लाख या उससे ज्यादा की होगी उसको गिरवी रख लेगा, उसको अपने पास मॉर्गेज रख लेगा एज अ सिक्योरिटी, कि अगर मैंने ड्यू डेट में, लेट्स से 10 साल के लिए लोन दिया है मुझे, अगर मैं 10 साल बाद उस एसेट, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे वापस नहीं करता, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरा 25 लाख या उससे ज्यादा की मालियत का एसेट बेच देगा और अपने लोन और अपने इंटरेस्ट के अमाउंट रिकवर कर लेगा। तो डिबेंचर एक IOU सर्टिफिकेट है, ऐसा सर्टिफिकेट है जो जिसपे लिखा होता है कि कितना लोन है, अमाउंट ऑफ लोन क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, ड्यू डेट क्या है और किस चीज को मॉर्गेज रखवाया गया है। सो इट्स एन IOU सर्टिफिकेट के द बिजनेस ओ यू दिस मच अमाउंट, so it's an IOU certificate that this much amount is owed at this rate of interest on this date, it has to be returned, and this is the asset which is kept as a mortgage, a collateral, a security, that in case of non-payment of loan, the asset kept as collateral will be sold and the amount will be recovered. I hope this is clear. अगर मैंने किसी से लोन लिया तो एज अ सिक्योरिटी मुझे अपना एक एसेट रखवाना पड़ेगा जिसकी वर्थ उस लोन के बराबर या उस लोन से ज्यादा होगी, ताकि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट जिस बंदे ने लोन दिया था वो उस एसेट को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर ले। If this is clear, write clear in the chat box. If you have a question, feel free to ask. सर 10 साल बाद सेम वैल्यू नहीं रहेगी एसेट की, बिल्कुल सही बात है कि अगर 10 साल बाद आप देखें तो 10 साल बाद उस एसेट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, लेकिन कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए वो ज्यादातर ये करते हैं कि महंगी चीज को गिरवी रखते हैं ताकि अगर उस चीज की वैल्यू कम भी हो जाए तो उस कंपनी को नुकसान नहीं हो, और अगर ज्यादा होगी वैल्यू तो वो बाकी पैसे वापस कर देगा। If a house is kept at mortgage, can we live in it? Yes, you can live in the mortgage house. अगर आपने अपना घर mortgage रखवाया हुआ है तो yes, आप उस घर में रह सकते हैं। In case of bank, it is compulsory, but also in case of friends and family, depends on your friend and family. अगर कोई friend and family बगैर interest के, बगैर security के लोन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर security रख रहा है तो उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। Sir, if someone is unable to pay the loan on time and the financial institution sells his mortgage asset after that, will the liability end or still the person has to pay the loan? The liability will end. अगर सपोज करें आपने गिरवी रखवाया था अपना घर और आप जो है वो अपना लोन रीपे नहीं कर सके, तो जो घर आपने गिरवी रखवाया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो घर बेच देगा। लेट्स से आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया था, वो घर आपका 35 लाख रुपए का बिका, तो 25 लाख रुपए वो ले लेगा, उस पे जितना इंटरेस्ट अभी तक आपने नहीं दिया वो ले लेगा और बाकी पैसे आपको लौटा देगा। Debentures are Sameed IOU certificates which are long-term loans on which interest is to be given and it is kept as a security. नहीं बेटा, mortgage and security deposit सेम चीज नहीं होती। security deposit कैश होता है, ठीक है, वो आप उसलिए देते हैं कि आप किसी की चीज खराब ना कर दें। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप उस वक्त देते हैं जब आपने किसी का घर रेंट पे लिया है या आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, ताकि अगर आप कोई 2 नंबरी करें तो आपके उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काट लिए जाएं। ऑन दी अदर हैंड मॉर्गेज एक सिक्योरिटी है, एसेट के कागजात लिए जाते हैं। मतलब आप, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी गाड़ी मॉर्गेज रखवाई गई है या आपका घर मॉर्गेज रखवाया गया है, तो आप अपना घर उसको नहीं दे देंगे, आप घर के कागजात उसको देंगे। The legal documents of the property or the car or the asset will be with the person who has given the loan. सिर्फ उस शख्स की जो है as a security. I hope this is clear to all of you. Sameed, I hope डिबेंचर समझ में आ गया। सारा, I hope आपको mortgage जो है वो
सिक्योर डिपॉजिट का फर्क समझ में आ गया. वैल्यू डिक्रीजेस एंड सेलिंग मॉर्गेज कैन नॉट कवर द लोन. शारिक ये उसकी बदकिस्मती है जिसने लोन दिया था, क्योंकि अगर कोई चीज आपने गिरवी रखवाई, उसकी वैल्यू कम हो गई तो और वो बेच दी, तो उसके बाद कोई राइट नहीं है दोबारा पैसे मांगने का. तो अगर वो चीज गिरवी रखवाई गई थी और उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसके बाद प्रॉब्लम हो जाता है. सर, बाय whom a business is granted a debenture loan? Financial institution. Financial institution. Current liabilities are those liabilities which are to be repaid within an accounting period. Current liabilities are those liabilities which are to be repaid within an accounting period. ये वो liabilities हैं जो आपको एक accounting period के अंदर अंदर चुका देनी है. For example, bank overdraft, accounts payable, accruals. Accruals का alternative name owings भी होता है, outstanding भी होता है. इसके अलावा very short term loans. So current liabilities are those liabilities which are to be repaid within an accounting period. Bank overdraft, accounts payable, accruals, outstanding, very short term loans. जी, कौन बताएगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? When bank allows us to overdraw our bank account by a certain amount. सही है, शाबाश. If the business withdraws more amount of money from the bank than is deposited into it, it is called bank overdraft. Let's say मेरे पास बैंक बैलेंस है $500 का. My need is $620. अच्छा, अकाउंटिंग में जब कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट लिखते हैं. ब्रैकेट का मतलब अकाउंटिंग में होता है माइनस. तो बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी 120. बैंक हर किसी ऐरे गहरे को बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दे देता, सिर्फ अपने लॉयल कस्टमर्स को देता है जिसके लिए वो श्योर होता है कि वो पैसे खा के नहीं भाग जाएंगे. लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट is the most expensive source of finance. Bank overdraft is the most expensive source of finance. क्यों? Because interest on it is charged on daily basis. हर रोज उस पे इंटरेस्ट लगता है. नॉर्मली जब आप लोन लेते हैं तो आपको एनुअल इंटरेस्ट देना पड़ता है, साल का इंटरेस्ट देना पड़ता है, पूरे साल का इंटरेस्ट दिया होता है. लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि रोज इंटरेस्ट लगता है. एंड हेंस लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लेते. एक दिन के लिए ले लिया, 2 दिन के लिए लिया, बहुत हो गया तो एक हफ्ते के लिए ले लिया, क्योंकि अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट ज्यादा ले लेंगे तो उनके ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा कि वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे. So bank overdraft is the facility provided by the bank. So I can say that bank
overdraft is the facility provided by the bank to its loyal customers to withdraw more amount of money than is deposited into it. ठीक है जी, आई होप बैंक ओवरड्राफ्ट क्लियर है। किसी का बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क। When banks payable, the amount taken on credit card is a liability. Yes, क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने पेमेंट कोई करी है और इसलिए करी है कि आपके पास पैसे नहीं है तो यस वो लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल आर द पीपल और बिजनेसेस टू whom we owe money. Accounts payable are the people or businesses to whom we owe money. Accounts payable वो लोग हैं या वो businesses हैं to whom we owe money. ठीक है, अकाउंट्स पेबल वो लोग हैं जिनको हमें पैसे देने हैं। ट्रेड पेबल्स आर ऑल दोज पीपल और बिजनेसेस फ्रॉम whom we have bought goods on credit. जिनको हम माल क्रेडिट पे बेचते हैं वो रिसीवेबल्स, जिनसे हम माल क्रेडिट पे खरीदते हैं वो पेबल्स। जिनको हम माल क्रेडिट पे बेचते हैं वो रिसीवेबल्स और जिनसे हम क्रेडिट पे खरीदते हैं वो पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स हो गए, उसके बाद जनरल पेबल्स, are all those people or business who have lent us money. जिन्होंने हमें पैसे उधार दिए हुए वो जनरल पेबल्स हैं। इन ईदर केस हमें पैसे उतारने हैं। अच्छा, एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है अकाउंट्स पेबल का, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स। इसी तरह जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं उनका भी एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल को डेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। सो यूजुअली ये जो शॉर्ट टर्म लोन वाले लोग होते हैं या जनरल पेबल्स होते हैं, यूजुअली वो इंटरेस्ट नहीं लेते यूजुअली, लेकिन वंस अगेन बंदा टू बंदा, पॉलिसी टू पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस ये प्रॉब्लम होता है। तो हमने डिसाइड किया कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स का एक और नाम होता है डेटर्स और अकाउंट्स पेबल का दूसरा नाम होता है क्रेडिटर्स। अब ट्रेड डेटर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, तो इसका मतलब वो जिनसे हमने माल उधार पे लिया है, और जनरल पेबल्स हैं जिनसे हमने पैसे उधार पे लिए हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन किसी भी फैमिली या फ्रेंड से आपने अगर 1 साल से कम अरसे के लिए कुछ दिनों के लिए पैसे उधार पे लिए हैं तो वो शॉर्ट टर्म लोन है। उस पर यूजुअली इंटरेस्ट नहीं होता है और आप जो है वो उनको पैसे लौटा देते हैं जब आपके पास पैसे आ जाते हैं। अगली टर्म जो है वो है अक्रूवल्स या ओइंग।
या आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स? कोई डिफाइन कर सकता है अक्रूवल्स को? When the business has received a service but has not yet paid for it, it is called accruals. जब बिजनेस कोई सर्विस यूटिलाइज कर ले लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी हो तो वो अक्रूवल्स होता है. फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल्स. आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं. बिल कब आएगा? महीने के आखिर में आएगा. अब जब बिल आएगा तब आपको पता चलेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, कि कितना अमाउंट आपने पे करना है. और जब तक आप वो पे नहीं कर देते उसको अक्रूवल्स या ओइंग्स या आउटस्टैंडिंग रेफर करेंगे. ठीक है. सो अक्रूवल्स आर द अमाउंट्स दैट आर टू बी पेड बाय द बिजनेस बिकॉज द बिजनेस हैज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड द सर्विसेज. ठीक है. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि अदर रिसीवेबल्स की कैटेगरी में प्री पेमेंट्स लिखा जा सकता है और इसी तरह अदर पेबल्स की कैटेगरी में अक्रूवल्स लिखा जा सकता है. ठीक है. तो ये अगर कभी अकाउंट्स पेबल में लिखा हो तो कोई हर्ज नहीं होता, एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि प्री पेमेंट्स और अक्रूवल्स का फर्क क्या है और प्री पेमेंट्स और अक्रूवल्स किस तरह डिफरेंट हैं कंपेयर टू अदर लायबिलिटीज. हर लायबिलिटी के अपने फीचर्स हैं, तो सबको ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स, अक्रूवल्स सबके फीचर्स अलग अलग हैं. तो सबके बारे में आपको सही से सारी बात पता होनी चाहिए. इज दिस क्लियर? सो फार सो गुड. किसी का कोई सवाल?